دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم رومانٹک ایج کو ڈسکس کریں گے، تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس ایج کی شروعات 1798 میں ہوئی تھی اور اس کا اختتام تقریباً 1837 میں ہوا تھا۔ بیسیکلی اس سے جو پہلے کی ایج تھی آلموسٹ 1660 سے 1750 یا 1760 تک کا ٹائم پیریڈ، اس میں پیور نیو کلاسیسزم چلی تھی، ہر چیز پر کلاسیکل انفلوئنس تھا۔ لیکن ایج آف جانسن میں آہستہ آہستہ چیزیں بدلنا شروع ہو گئی تھیں۔ رائٹرز نے جب دیکھا تھا کہ لوگ سٹیز میں شفٹ ہو رہے ہیں اور وہ نیچر سے دور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایسے کیا تھا کہ پرسنل ایکسپیرینسز، سبجیکٹیوٹی اور نیچر کی بیوٹی پر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن یہ رومانٹک رائٹرز کی طرح نیچر پر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے اور نہ یہ نیچر پر زیادہ ایگزیجریٹ کر کے لکھتے تھے، یہ ایک لمٹ میں رہ کر ایموشنز پر اور نیچر پر لکھا کرتے تھے۔ اور یہاں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی موومنٹ یا ایج یکدم سے شروع نہیں ہو جاتی کہ کسی نے آج رومانٹک ورک لکھا اور صبح رومانٹک ایج شروع ہو جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ چیزیں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایج آف جانسن میں بھی رائٹرز آہستہ آہستہ ایموشنز کے بارے میں لکھ رہے تھے اور ساتھ ہی کلاسیسزم کو بھی فالو کر رہے تھے، سب کچھ پہلے سے شروع تھا۔ اور پھر فائنلی 1798 میں ولیم ورڈزورتھ اور ایسٹی کولریج نے لیریکل بیلڈز پبلش کروائی تھی اور یہاں سے مانا جاتا ہے کہ رومانٹک ایج کی شروعات ہو گئی تھی۔ اگر لیریکل بیلڈز کی بات کی جائے تو یہ پوئمز کی ایک کلیکشن تھی جو کہ سمپل لینگویج یعنی کہ کامن پیپل کی لینگویج میں لکھی گئی تھیں۔ ان پوئمز میں مین فوکس آرڈینری پیپل کی لائف پر تھا اور ساتھ ہی نیچر، ایموشنز، امیجینیشنز اور سپر نیچرل چیزوں کو بھی ڈسکس کیا جاتا تھا، اور لینگویج سمپل ہونے کی وجہ سے ہر کوئی انہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ ٹوٹل 4 ایڈیشنز میں پبلش ہوئی تھیں۔ ان کا پہلا ایڈیشن 1798 میں پبلش ہوا تھا اور اس میں 23 پوئمز تھیں، جن میں سے 19 ولیم ورڈزورتھ کی تھیں جبکہ 4 ایسٹی کولریج کی تھیں۔ پھر 1800 میں سیکنڈ ایڈیشن پبلش ہوا تھا اور ولیم ورڈزورتھ نے اس میں چینجنگ کی تھی۔ انہوں نے ایسٹی کولریج کی 4 پوئمز میں سے دی نائٹنگیل اور دی ڈنجین کو مین سیکشن سے علیحدہ کر کے دوسرے سیکشن میں موو کر دیا تھا۔ اب مین سیکشن میں ایسٹی کولریج کی صرف 2 پوئمز رہ گئی تھیں۔ پھر 1802 میں اس کا 3rd ایڈیشن آیا تھا اور پھر 1805 میں فائنل اور 4th ایڈیشن آیا تھا۔ اس میں بھی ولیم ورڈزورتھ نے کچھ چینجنگ کی تھی اور نیو پوئمز ایڈ کی تھیں۔ اب چلتے ہیں اس ایج کی مونارکی کی طرف۔ اگر اس ایج میں مونارکی کی بات کی جائے تو 1820 تک تو جارج 3rd ہی کنگ رہے تھے۔ پھر 1820 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کے بیٹے جارج 4th نے مونارکی سنبھال لی تھی۔ کنگ بننے سے پہلے 1811 سے 1820 تک جارج 4th نے پرنس ریجنٹ کے طور پر سرو کیا تھا۔ پرنس ریجنٹ کسی بھی ایسے پرنس کو بولتے ہیں جو کنگ کی غیر موجودگی میں یا کسی مصروفیت کی صورت میں کنگ کی جگہ رول کرتا تھا، اور جو یہ جارج 3rd تھے وہ مینٹل النس کی وجہ سے پراپر رول نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے جارج 4th کو پرنس ریجنٹ بنا دیا تھا۔ لیکن یہ اپنے فادر سے بالکل اپوزٹ تھے۔ ان کے فادر تو اپنے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن انہیں لوگوں سے زیادہ اپنے لیوش لائف سٹائل کی فکر رہتی تھی، اور ان کے اسی حرکت کی وجہ سے لوگ انہیں اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ چونکہ یہ آرام پسند تھے تو ان کی لائف کے آخری سالوں میں ان کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے تھے اور یہ زیادہ تر اپنے منسٹرز پر ریلائے کرتے تھے۔ ان کے ایرا میں جو امپورٹنٹ کام ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 1829 میں کیتھولک ایمانسیپیشن ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، جس میں کیتھولکس پر لگی ریسٹرکشن ختم کر دی گئی تھی اور انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے اور کام کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی، اور اس کے علاوہ کیتھولکس کو تمام سول اور ریلیجیس رائٹس بھی مل گئے تھے اور انہیں ووٹنگ کا حق بھی دے دیا گیا تھا۔ آلدو جارج 4th نے اس ایکٹ کو اپوز کیا تھا، یہ اس کے فیور میں نہیں تھے، لیکن ان کی کسی نے سنی ہی نہیں تھی۔ پھر اگلے ہی سال یعنی کہ 1830 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کا کوئی بھی لیجیٹیمیٹ چائلڈ نہیں تھا، تو مونارکی ان کے بردر ولیم 4th کے پاس چلی گئی تھی۔ ولیم 4th جب کنگ بنے تھے تو اس وقت ان کی ایج 64 ایئرز تھی، اور اگر ان کے ایرا میں امپورٹنٹ ایکٹ دیکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے 1832 میں دی ریفارم ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ پاس کروایا تھا۔ اس ایکٹ میں پارلیمنٹ کے ممبرز چوز کرنے کے لیے جو ووٹنگ رائٹس تھے وہ بڑھا دیے گئے تھے۔ پہلے صرف اپر کلاس اور ویلدی پیپل تھے وہ ووٹنگ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اب مڈل کلاس کو بھی حق دے دیا گیا تھا۔ لیکن اس ایکٹ میں بھی وومن کو ووٹ کرنے کا رائٹ نہیں دیا گیا تھا۔ پھر ایک سال کے بعد یعنی کہ 1833 میں سلیوری ایبولیشن ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، اور اس ایکٹ کے تحت سلیوری کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن آلدو یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، یہ چلتی رہی تھی اور کچھ سالوں بعد اس کا خاتمہ مکمل طور پر ہوا تھا۔
इसके अलावा 1833 में फैक्ट्री एक्ट के नाम से एक एक्ट पास हुआ था जिसमें 9 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के मिल में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और 9 ईयर्स से 13 ईयर्स के जो बच्चे थे वो मिल में सिर्फ 8 घंटे तक काम कर सकते थे और साथ ही इनका 2 घंटे स्कूल में पढ़ना भी लाजमी होता था। अब चलते हैं सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अगर इस सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आता है एम्फेसिस ऑन नेचर। बेसिकली ये जो रोमांटिक एज है इसमें नेचर को सेलिब्रेट किया गया था, नेचर पर बढ़ा चढ़ाकर वर्क्स लिखे गए थे। राइटर्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था कि नेचर एक टीचर की तरह है जो कि ह्यूमन कैरेक्टर को डेवलप करती है और उसके अंदर मॉरल सेंसिबिलिटी को पैदा करती है। जबकि इस एज के जो दूसरे राइटर्स हैं उन्होंने नेचर को एक चाइल्डहुड के साथ लिंक किया है। उनका कहना था कि जैसे ह्यूमंस का चाइल्डहुड इनोसेंट होता है बिल्कुल सेम वे में जो नेचर है वो भी इनोसेंट है। रोमांटिक राइटर्स का यह भी मानना था कि जो ये नेचर है वो रिफ्लेक्शन है ह्यूमन नेचर की। ये नेचुरल इमेजरी का यूज करके ह्यूमंस के अंदर जो इनर स्टेट होती थी उसको रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टॉर्मी सी दिखाया जाए या उसके बारे में बताया जाए तो उसको अगर हम ह्यूमन नेचर के साथ कंपेयर करें तो वो इंसान के इनर कॉन्फ्लिक्ट को जाहिर करता है, जबकि अगर कोई काम लेक है तो वो इंसान के अंदर के पीस को जाहिर करती है। सेकंड पर आता है फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। रोमांटिक एज की जो कोर थीम या मेन थीम थी वो इंडिविजुअलिज्म पर फोकस था। रोमांटिक राइटर्स का मानना था कि किसी भी चीज की जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है वो एक इंडिविजुअल के अंदर से आती है, यानी कि उसकी पर्सनल फीलिंग से आती है। अगर उसका दिल किसी चीज के बारे में कह रहा है कि ये अच्छी है तो वो अच्छी ही है। इन्होंने जो क्लासिसिज्म में लॉजिक और रीजन पर फोकस था उसे चैलेंज किया था। इनका मानना था कि जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो एक इंसान की पर्सनल फीलिंग और इमेजिनेशन है और उसे उन दोनों चीजों का यूज करके सच्चाई को मालूम करना चाहिए। इन्होंने जो लिटरेचर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी में रूल्स चल रहे थे उन्हें अपोज किया था, इन्होंने उन्हें चैलेंज किया था। और बहुत से रोमांटिक राइटर्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वगैरह जैसे आइडियाज से इंस्पायर्ड थे। इनका मानना था कि जो कुछ भी है वो एक इंडिविजुअल ही है और बेसिकली सेज में सब्जेक्टिव अप्रोच भी आ चुकी थी, यानी कि राइटर्स और आर्टिस्टिक्स वगैरह को आजादी थी कि वो जो चाहे बना सकते थे या जो चाहे लिख भी सकते थे, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। थर्ड पर आता है फोकस ऑन कॉमन पीपल एंड फोक ट्रेडिशंस। बेसिकली ये जो रोमांटिक एज है इसमें मेन फोकस कॉमन पीपल पर था। अब इन कॉमन पीपल में पीजेंट्स और लेबरर्स वगैरह जैसे लोग आते थे, इन शॉर्ट के हमारे जैसे लोग। और अगर इससे पहली एजेस की बात की जाए तो उनमें एलिटिज्म का कॉन्सेप्ट था। एलिटिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटी या सिस्टम को एक एलाइट बंदा रूल करेगा या डोमिनेट करेगा, लेकिन ये जो रोमांटिक राइटर थे ये सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे, ये एलिटिज्म के भी खिलाफ थे और इन्होंने एलाइट लैंग्वेज में लिखना भी बंद कर दिया था। ये अपने वर्क्स में कॉमन लैंग्वेज का यूज करते थे और लैंग्वेज कॉमन होने की वजह से कॉमन लोग उसे आसानी से पढ़ भी सकते थे और समझ भी सकते थे। और इन रोमांटिक राइटर्स के वर्क में जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो भी कॉमन लोगों में से ही एक होता था। इसके अलावा इस एज में फोक ट्रेडिशंस भी बहुत ज्यादा कॉमन थी। राइटर्स का मानना था कि जो फोक सॉन्ग्स, फेरी टेल्स और बैलेड्स वगैरह होते हैं ये सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि एक कल्चर की पहचान हुआ करती हैं। इनका कहना था कि हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बताती हैं कि वो क्या थे। और अगर फोक ट्रेडिशंस की बात की जाए तो ये रीजन से रीजन वेरी करती हैं, यानी कि किसी रीजन में कोई और टेल होगी जबकि किसी में कोई और टेल, लेकिन जिस भी रीजन में हो ये होती सिंपल लैंग्वेज में है। सिंपल लैंग्वेज में इसलिए होती हैं ताकि हर कोई इन्हें समझ सके और इनसे सीख सके, और ये ज्यादातर लोगों को मॉरल लेसन देने के लिए सुनाई जाती हैं। फोर्थ पर आता है यूज ऑफ सुपर नेचुरल एंड गोथिक एलिमेंट्स। बेसिकली ये जो रोमांटिक राइटर्स हैं इन्होंने इनलाइटनमेंट रैशनैलिटी को चैलेंज करने के लिए अपने वर्क्स में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में घोस्ट, डेमन्स और वैम्पायर्स वगैरह हुआ करते थे। और अगर रोमांटिक राइटर्स की बात की जाए तो इनका पर्पस लोगों को डराना नहीं था बल्कि ह्यूमंस की डार्क डिजायर्स, उनकी मैडनेस और ऑब्सेशंस वगैरह को दिखाना था। ये अपनी राइटिंग में ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते थे जो सोसाइटी से बहुत दूर रहते थे, जिन्हें अपनी लाइफ में कोई ना कोई गिल्ट जरूर होता था, या ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते थे जिनके कोई ना कोई डार्क सीक्रेट्स हुआ करते थे। और अगर इनकी सेटिंग्स की बात की जाए तो वह ज्यादातर हांटेड कैसल्स, एबंडेंड रूम्स और एरी फॉरेस्ट वगैरह पर होती थी, और इससे ये ऑडियंस या रीडर में फियर और सस्पेंस क्रिएट करते थे। सबसे पहला गोथिक नॉवल 1764 में द कैसल ऑफ ओट्रांटो के नाम से पब्लिश हुआ था। यह वर्क होरेस वेलपोल ने पब्लिश करवाया था। इस वर्क में इन्होंने मैनफ्रेड नेम के एक रूलर की स्टोरी बताई है कि उसे बहुत ज्यादा पावर हासिल करने का शौक था और उसकी यही डिजायर उसे एंड पर ले डूबी थी।
फिफ्थ पर आता है रेबिलियन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि आपको पता ही है 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर थी, जिसकी वजह से हुआ कुछ यूं था कि एक जो ट्रेडिशनल लाइफ चली आ रही थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यू मशीन्स इन्वेंट हो रही थी, तो बहुत से लोगों का रोजगार भी चला गया था। अब फैक्ट्री मालकान को सामान भी ज्यादा मिलता था और उनका इतना खर्चा भी नहीं आता था, तो उन्होंने ऐसे किया था कि वर्कर्स को मशीन के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। अब जब बहुत से लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे, तो उन्होंने फैसला किया था कि हम इन सब का बदला लेंगे, और उन्होंने एक लुडाइट मूवमेंट नामी एक मूवमेंट शुरू कर दी थी। इस मूवमेंट का नाम नेड लुड नामी एक बंदे के नाम पर पड़ा था। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जबकि कुछ कहते हैं कि ये रियलिटी पर मबनी है। बहरहाल इस मूवमेंट की शुरुआत इंग्लैंड की सिटी नॉटिंघम से हुई थी, और इस मूवमेंट में ये ऐसे करते थे कि जैसे ही रात होती थी उस वक्त थोड़े वगैरह लेकर फैक्ट्रीज पर हमला कर देते थे और न्यू मशीन्स को तोड़ फोड़ देते थे। ये मूवमेंट काफी अरसे तक चलती रही थी, लेकिन जब इसने अपनी जड़ें दूसरी स्टेट्स में फैलाना शुरू की थी, तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ताकत का इस्तेमाल किया था और उन्होंने इसे खत्म भी कर दिया था। बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया था, जबकि कुछ को मार भी दिया गया था और कुछ को पेनल कॉलोनीज में भी शिफ्ट कर दिया गया था। ये थे सेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं सेज के राइटर्स की तरफ। अगर इस सेज के राइटर्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक इंग्लिश पोएट थे जिनका लाइफ स्पैन 1770 से 1850 तक था। ये एक इंग्लैंड के छोटे से टाउन कॉकमाउथ में पैदा हुए थे, पर जिस एरिया में ये पैदा हुए थे उसे लेक डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्री साइड में पैदा हुए थे। इसी वजह से इन्हें नेचर से भी बहुत ज्यादा लगाव था। इनके पैदा होने के एक साल बाद ही यानी कि 1771 में इनकी एक सिस्टर ड्रॉथे वर्ड्सवर्थ भी पैदा हो गई थी, और इन दोनों बहन भाइयों ने थ्रू आउट देयर लाइफ बहुत अच्छी बॉन्ड शेयर की थी। ऑल्दो ये अपनी मदर की डेथ के बाद दोनों सेपरेट हो गए थे, लेकिन इनकी ये जो बॉन्ड थी वो चलती रही थी, और ड्रॉथे ने वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर किया था कि वो नेचर पर भी लिखें। अगर वर्ड्सवर्थ की अर्ली लाइफ की बात की जाए तो उस वक्त ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत ज्यादा सपोर्टर थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का चौंक के मेन पर्पस लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी था, तो इस वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर वर्ड्सवर्थ 1790 में फ्रांस भी गए थे, और इसी वजह से हमें इनके अर्ली वर्क्स में फ्रीडम और इक्वालिटी वगैरह जैसी थीम भी नजर आती हैं। जब ये फ्रांस गए थे तो इन्हें वहाँ एक एनेट वेलन नामी लड़की से प्यार हो गया था, और इनकी एक बेटी कैरोलिन भी हुई थी, लेकिन इन दोनों ने कभी मैरिज नहीं की थी। और जब ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो गए थे तो ये उन दोनों को छोड़कर वापस आ गए थे। और फिर जब 1794 से 1798 के दरमियान फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई थी, तो ये उस मूवमेंट से भी मायूस हो गए थे और इनका झुकाव नेचर की तरफ बढ़ गया था। अपनी इसी मायूसी का जिक्र इन्होंने अपने वर्क द प्रीलोड में भी किया है। अगर इनके वर्क्स की बात की जाए तो 1793 में इन्होंने अपना पहला वर्क एन इवनिंग वॉक के नाम से पब्लिश करवाया था। इस वर्क में इन्होंने अपनी नेचुरल और रूरल लाइफ में जो इंटरेस्ट थी उसे शो करवाया है। इसके अलावा अगर इनके वर्क्स की मेन थीम की बात की जाए तो उसमें हमें ज्यादातर नेचर, मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन, चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, सोशल इनजस्टिस और ह्यूमैनिटी वगैरह जैसी थीम्स नजर आती हैं। इसके अलावा ये अपने लिरिकल बैलेड्स की वजह से भी काफी फेमस हैं। फिर 1850 में जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनकी डेथ के कुछ अरसे के बाद द प्रीलूड नामी इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी और ये टोटल 14 बुक्स पर मुश्तमिल थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये वर्क 1798 में लिखना शुरू कर दिया था और ये वर्क 1850 तक वो लिखते रहे थे। फिर जब उनकी डेथ हो गई थी तो उस वक्त तक इस वर्क का कोई भी टाइटल नहीं था, तो इनकी जो विडो थी मैरी, उन्होंने इस वर्क का ये टाइटल दिया था। अपने इस वर्क में वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ को चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक बयान किया है और 1843 में इन्हें पोएट लॉरेट भी अपॉइंट कर दिया गया था और ये 1850 तक यानी कि अनटिल हिज डेथ पोएट लॉरेट रहे थे। सेकंड पर आते हैं एस टी कॉलरेज। एस टी कॉलरेज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरेज था। ये एक इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक और फिलोसोफर थे जिनका लाइफ स्पैन 1772 से 1834 तक था। इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर रोमांटिक एज को शेप करने में एक अहम रोल प्ले किया था। इन दोनों की दोस्ती ने क्लासिकल एज को तो खत्म किया ही था, लेकिन इनकी अपोजिट थिंकिंग होने की वजह से एंड पर क्लासिकल एज की तरह इन दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई थी।
इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से हासिल की थी और फिर बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इन्होंने डिग्री इनकम्प्लीट छोड़ दी थी। फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ एसटी कॉलरेज को बहुत से हेल्थ इश्यूज भी थे। इन्हें जॉइंट पेन की बीमारी भी थी और बहुत से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी थे, और जॉइंट पेन को दूर करने के लिए ये कोपियन नाम का पेन किलर लेते थे और ये पेन किलर इन्हें यूज करने की आदत बन गई थी, और इसी आदत की वजह से इनसे कुछ लिखा भी नहीं जाता था और ना ये अपने किसी रिलेशनशिप को मेंटेन रख पाते थे। ये ज्यादातर आइसोलेशन में रहते थे और इसी वजह से इनके कुछ वर्क्स भी इनकम्प्लीट रह गए हैं। अगर इनके वर्क्स की मेन थीम की बात की जाए तो उसमें हमें इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, सुपर नेचुरल एंड मिस्ट्रीज, स्पिरिचुअलिटी एंड नेचर, गिल्ट, रिडेम्पशन और मॉरल इश्यूज जैसी थीम्स नजर आती हैं। ये अपने वर्क द राइम ऑफ एशिएंट मैरिनर और कुबला खान की वजह से काफी फेमस हैं। अपने वर्क द राइम ऑफ एशिएंट मैरिनर में इन्होंने एक मैरिनर नामी बंदे की स्टोरी बताई है जो कि अबाट्रस नामी परिंदे को मार देता है, जिसकी वजह से उस पर और उसके साथियों पर मुश्किलात आ जाती हैं, और उन लोगों में से सिर्फ जो ये मैरिनर है ये जिंदा बच पाता है। इनके इस वर्क में थीम ऑफ गिल्ट दिखाया गया है। जबकि अगर इनके दूसरे वर्क कुबला खान की बात की जाए तो ये एक इनकम्प्लीट वर्क है। इस वर्क में इन्होंने एक मंगोल एम्परर कुबलाई खान के अंडर कंस्ट्रक्शन पैलेस के बारे में बताया है। ये वर्क इनके ख्वाब पर मबनी है, यानी कि ये हकीकत नहीं था। जब ये ओपियम का यूज करते थे तो उस वक्त इन्हें ख्वाब वगैरह आते थे। उनके उसी ख्वाब में एक बार इन्होंने ये पैलेस देखा था और उन्होंने इस पैलेस के बारे में लिखा है। थर्ड पर आते हैं लॉर्ड बायरन। इनका रियल नेम जॉर्ज गॉर्डन बायरन था और जो ये लॉर्ड बायरन है ये इनका फैमिली टाइटल था। ये एक इंग्लिश पोएट थे जिनका लाइफ स्पैन 1788 से 1824 तक था, और जब ये पैदा हुए थे तो इन्हें क्लब फुट नामी एक बीमारी भी थी। इस बीमारी की वजह से इनका एक पाँव मुड़ा हुआ था। ये सिर्फ 3 इयर्स के थे जब इनके फादर की डेथ हो गई थी, और जब ये 10 इयर्स के हुए थे तो इनके अंकल विलियम बायरन की भी डेथ हो गई थी। इनके अंकल की डेथ के बाद इनका जो फैमिली टाइटल था बैरन बायरन या लॉर्ड बायरन वो जॉर्ज को मिल गया था, और वहां से ये इंग्लैंड की एक टाउन रॉचडेल के लॉर्ड बायरन बन गए थे। अगर इनके लिटरेरी कैरियर की बात की जाए तो इन्होंने अपना पहला वर्क हाउस ऑफ आइडलनेस के नाम से पब्लिश करवाया था। यह वर्क 1807 में पब्लिश हुआ था, और जब यह वर्क पब्लिश हुआ था उस वक्त ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एजुकेशन हासिल कर रहे थे। इनके इस वर्क पर इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी क्योंकि राइटर्स का कहना था कि यह इनका एक इमैच्योर वर्क है। इस क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में इन्होंने 1809 में इंग्लिश बर्ड एंड स्कॉच रिव्यूअर्स के नाम से एक वर्क पब्लिश करवाया था, और जो लोग इन पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे इन्होंने उस वर्क में उन्हें क्रिटिसाइज किया था, और यहाँ से इनको फेम मिलना शुरू हो गई थी। ये सबसे ज्यादा अपने वर्क चिल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज की वजह से काफी फेमस हैं। इस वर्क के 4 कैंटोज हैं। इसके पहले दोनों कैंटो 1812 में पब्लिश हुए थे, जबकि थर्ड कैंटो 1816 में पब्लिश हुआ था, और फोर्थ और फाइनल कैंटो 1818 में पब्लिश हुआ था। अपने इस वर्क में इन्होंने एक चाइल्ड हारोल्ड नामी बंदे की एक स्टोरी बताई है जो कि एक यंग नोबल मैन है, और ये बंदा अपना घर छोड़ देता है और फ्रीडम और सोसाइटल करप्शन से दूर रहने के लिए ये यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में भटकता रहता है। इसके अलावा ये अपने एक वर्क डॉन जॉन की वजह से काफी फेमस हैं। ये इनका एक इनकम्प्लीट वर्क है। इसे कंप्लीट करने से पहले ही लॉर्ड बायरन की डेथ हो गई थी। फोर्थ पर आते हैं पीबी शैली। इनका पूरा नाम पर्सी बी शैली था। ये एक इंग्लिश राइटर थे जिनका लाइफ स्पैन 1792 से 1822 तक था। इन्हें अपनी लाइफ में इतनी फेम नहीं मिली थी जितनी इन्हें इनके डेथ के बाद मिली थी। ये एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए थे। इनके फादर टिमोथी शैली पार्लियामेंट के मेंबर थे और वो काफी वेल्दी भी थे। ये ऑक्सफोर्ड में स्टडी कर रहे थे कि 1811 में इन्होंने एक वर्क द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के नाम से पब्लिश करवाया था। इस वर्क की वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। बेसिकली इस वर्क में इन्होंने कहा था कि गॉड की मौजूदगी एक झूठ है, और अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो उस बात का कोई प्रूफ क्यों नहीं है। जैसे ही इन्होंने ये वर्क लिखा था ऑक्सफोर्ड कॉलेज वालों ने इन्हें एथिस्ट समझकर कॉलेज से निकाल दिया था। ये रिलीजन के अगेंस्ट तो थे ही, लेकिन साथ ही ये मोनार्की के अगेंस्ट भी थे। ये चाहते थे कि हर किसी को फ्रीडम हासिल हो, और इनके इसी बिलीफ की वजह से इन्हें सारी लाइफ बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा था। अगर इनके वर्क्स की मेन थीम की बात की जाए तो उसमें आपको नेचर के अलावा फ्रीडम एंड रेवोल्यूशन, रेबिलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, क्रिटिक ऑफ रिलीजन वगैरह जैसी थीम्स नजर आती हैं।
ये अपने वर्क ओzymandias की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1818 में पब्लिश करवाया था। इस वर्क में ये स्टोरी बता रहे हैं कि ये एक इजिप्टियन किंग के स्टैचू के पास खड़े हैं और बता रहे हैं कि एक वक्त था जब ये स्टैचू पावर और प्राइड का सिंबल हुआ करता था, लेकिन अब ये सहरा में टूटा हुआ पड़ा है और कोई इसे नहीं जानता। इस वर्क का मेन पर्पज ये बताना था कि पावर और ग्लोरी टेम्परेरी होती है और कोई भी रूलर चाहे वो कितना स्ट्रांग क्यों नहीं है, एक दिन उसकी सारी अचीवमेंट्स खत्म हो जाएंगी। फिर 1822 में पीबी शैली एक कश्ती पर सफर कर रहे थे कि वो तूफान की जद में आकर टूट गई थी और डूबने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। फिफ्थ पर आते हैं जॉन कीट्स। ये रोमांटिक पोइट्स की सेकंड जनरेशन में से एक पोइट थे और इनका लाइफ स्पैन 1795 से 1821 तक था। सिर्फ 25 इयर्स की एज में इनकी टीबी की वजह से डेथ हो गई थी। इनकी मदर और ब्रदर की भी टीबी की वजह से ही डेथ हुई थी। इनकी अर्ली लाइफ में इन्हें लिटरेचर से काफ़ी लगाव था और ये एडमंड स्पेंसर के वर्क द फेरी क्वीन से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इन्होंने एक सर्जन के पास काम करना शुरू कर दिया था और 1816 में इन्हें एपोथेकेरी का लाइसेंस भी मिल गया था। एपोथेकेरी ऐसे बंदे को बोलते हैं जो कि मेडिसिन बनाता है और बेचता भी है। इन्हें लाइसेंस तो मिल गया था लेकिन इनका लिटरेचर से लगाव खत्म ही नहीं हो रहा था और इनके दो दोस्तों लेग हांट और पीबी शैली ने इन्हें लिटरेचर लिखने के लिए इंस्पायर किया था। इन दोनों से इंस्पायर होकर 1816 में ही इन्होंने ओ सॉलिट्यूड के नाम से एक वर्क लिखकर अपने राइटिंग कैरियर का आगाज कर दिया था और ये ज़्यादातर अपनी ऑड्स की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ऑड की अगर बात की जाए तो एक लिरिकल पोइट्री की टाइप है जिसमें स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग या इवेंट को एड्रेस किया जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। ये अपनी ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न और ऑड टू ऑटम की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ये थे इस एज के कुछ मेल राइटर्स। अब चलते हैं इस एज की फीमेल राइटर्स की तरफ। अगर इस एज की फीमेल राइटर्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आती हैं मैरी शेली। बेसिकली एक नॉवलिस्ट थी जिनका लाइफ स्पैन 1797 से 1851 तक था और ये पीबी शैली की सेकंड वाइफ थी। इसके अलावा ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो कि वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती थी, उनकी डॉटर थी। यहाँ अब आपको ये लग रहा होगा कि इनकी लिटरेचर में आने की वजह इनकी मदर थी, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनकी मदर की तो जब ये 11 डेज की थी डेथ हो गई। फिर बाद में इनके फादर विलियम गॉडविन ने इन्हें पढ़ाया लिखाया था। अगर मैरी की बात की जाए तो 1814 में यानी कि 16 ईयर्स की एज में ये पीबी शैली के साथ यूरोप इलोप कर गई थी, यानी कि उनके साथ यूरोप भाग गई थी। लेकिन ये अकेली नहीं गई थी, इनके साथ इनकी स्टेप सिस्टर क्लेयरमाउंट भी गई थी। अब जब ये तीनों यूरोप गए थे तो इन्हें वहाँ बहुत सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ा था और ये डेप्ट में गिर चुके थे। अब जिन लोगों से इन्होंने डेप्ट लिया था उनसे बचने के लिए ये सिटीज चेंज करते रहते थे, कभी किसी सिटी जाते थे कभी दूसरी, ताकि डेप्ट लेने वाले लोग इन तक ना पहुंच सकें। 1816 में भी लोगों से बचने के लिए ये जिनेवा लेक की ट्रिप पर चले गए थे और वहाँ इनकी मुलाकात लॉर्ड बायरन और उनके फिजिशियन जॉन से हुई थी। अब ये पांचों डियोदाती विला में रह रहे थे कि एक दिन मौसम खराब हो गया था तो लॉर्ड बायरन ने इन सबको एक गोथिक स्टोरी लिखने का चैलेंज भी दिया था। अभी इस वक्त तक पीबी शैली और मैरी ने शादी नहीं की थी। फिर इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर इन्होंने बाद में एक वर्क फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस के नाम से 1818 में पब्लिश करवाया था और इसी वर्क की वजह से मैरी को मदर ऑफ साइंस फिक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये अपने एक वर्क द लास्ट मैन की वजह से काफ़ी फेमस हैं। इस वर्क में इन्होंने एक लियोनल नामी बंदे की स्टोरी बताई है कि उसके इरा में प्लेग आ गई थी और उसके इर्द गिर्द के सारे लोग मर गए थे और सिर्फ वो जिंदा बच गया था। इसके अलावा अगर पीबी शैली और मैरी की शादी की बात करें तो 1816 में ही पीबी शैली की फर्स्ट वाइफ ने सुसाइड कर ली थी, तो इन दोनों ने ऐसे किया था कि इंग्लैंड वापस आकर शादी कर ली थी। सेकंड पर आती हैं जेन ऑस्टन। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी जिनका लाइफ स्पैन 1775 से 1817 तक था। ये ह्यूमन नेचर की कीन ऑब्जर्वर थी और इनके वर्क्स में हमें ऐसे कैरेक्टर नजर आते हैं जो कि इनके टाइम पीरियड का पोर्ट्रेयल है, यानी कि वो इनके टाइम पीरियड की मुकम्मल अक्कासी करते हैं। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन घर पर ही हासिल की थी और इन्हें छोटे होते से ही रीडिंग और राइटिंग का बहुत शौक था। इनके इसी शौक की वजह से इनके घर वालों ने इन्हें वर्क्स लिखने के लिए मोटिवेट भी किया था और अपनी फैमिली को अम्यूजमेंट प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में कुछ वर्क्स भी लिखे थे। अगर इनके वर्क्स की बात की जाए तो उसमें ज़्यादातर फोकस वुमेन की लाइफ पर मिलेगा और इन्होंने सोशल हायरार्कीज और जेंडर इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज भी किया है।
इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत तो यंग एज से ही शुरू कर दी थी, लेकिन वो वर्क इन्होंने कभी पब्लिश नहीं करवाए थे। वो वर्क सिर्फ इनके फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए हुआ करते थे। ऑफिशियली इन्होंने अपना पहला वर्क 1811 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से पब्लिश करवाया था, लेकिन जब इन्होंने ये वर्क पब्लिश करवाया था उस टाइम इन्होंने अपना रियल नेम यूज नहीं किया था, बल्कि इसकी जगह इन्होंने बाय अ लेडी का टाइटल यूज किया था। इन्होंने अपने सारे वर्क की एनोनिमसली पब्लिश करवाए थे। फिर जब 1817 में इनकी डेथ हुई थी तो इनके डेथ के बाद इनके ब्रदर हेनरी ऑस्टन ने दुनिया को इस बारे में बताया था कि ये वर्क्स जेन ऑस्टन ने लिखे हैं, और इन्हें ज्यादातर फेम भी इनकी डेथ के बाद 20th सेंचुरी में ही मिली थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।